খুলেছো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকশন অ্যাকশন প্রজেক্ট ক্লাস ওয়ানটা খুলছি। স্যার ওই এএসএপি মেথোডোলজি, তাই তো? হুম। হ্যালো। হুম। আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছেন? হুম। খুলেছেন? হুম স্যার, খুলেছি প্রজেক্ট ক্লাস ওয়ান। এবার ফার্স্ট দেখুন কি বলা আছে। এএসএপি মেথোডোলজি। অ্যাসাপ মেথোডোলজি। এই অ্যাসাপ মেথোডোলজিটার সম্বন্ধে টোটাল এভরিথিং মানে হচ্ছে যে এ টু জেড যে ডিসকাশন, সেই ডিসকাশনটা আমি যে একটা প্রথম থেকে 26 পেজেসের যে একটা ডকুমেন্টেশন দিয়েছিলাম, সেই ডকুমেন্টেশনের মধ্যে করা আছে। অ্যাসাপ মেথোডোলজিটা হচ্ছে যখন অ্যাক্সিলারেটেড এসএপি, ঠিক আছে, অ্যাসাপ অ্যাক্সিলারেটেড এসএপি হচ্ছে একটা প্রজেক্ট যখন তৈরি হবে, স্টার্ট হবে, সেই স্টার্ট হওয়ার সময়তে মানে সমস্ত পুরো লাইফ সাইকেলটা কীভাবে চলবে তার যে প্ল্যান প্রোগ্রাম রোড ম্যাপ, সেটা হচ্ছে অ্যাসাপ মেথোডোলজি। টোটাল টোটাল প্ল্যান প্রোগ্রাম রোড ম্যাপ এভরিথিং হচ্ছে অ্যাসাপ মেথোডোলজি। ঠিক আছে, বুঝে গেল? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ স্যার বলছি বলুন। টোটাল প্ল্যান প্রোগ্রাম রোড ম্যাপ যেটা আছে সেইটা হচ্ছে অ্যাসাপ মেথোডোলজি, একটা একটা এসএপি ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্টের। ঠিক আছে, বলছে যে এসএপি অ্যাক্সেলেরেটেড মেথোডোলজি প্রোভাইড দ্য রোড ম্যাপ ফর অপটিমাইজিং অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এসএপি সিস্টেম ইন বিজনেস প্রসেস। এইখানে যদি বলা হয় আপনাকে শর্টকাটে হোয়াট ডু মিন হোয়াট ইজ অ্যাসপ মেথোডোলজি, সেই পারপাসে কিন্তু ডেফিনেশনটা লেখা আছে কেন। The solution was developed to generate a successful, cost-efficient, and on-time delivery of project solution to provide the whole team with a project management roadmap. দেখুন এই যে কথাগুলো লেখা আছে না এরকম পরপর, এরকম নয় যে এগুলো আপনাকে মুখস্থ করার জন্য, ভালো করে বুঝবেন। আপনি কি বলবেন? অ্যাজ আ মেথোডোলজি প্রোভাইডস or helps us to create a roadmap for continuous implementation of SAP system in a business process, right? হুম স্যার। বলছে তারপর বলছে কি দিস সলিউশন ইজ ডেভেলপ টু জেনারেট এ সাকসেসফুল, বলছে ইট ইজ হেল্প। দেখুন এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখেছে এর মানে যে একদম এরকমই বলতে হবে তা না, এটা কোনো বইয়ের ভাষা নয় বা একদম পুরো এই নয়। ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল by which industry successfully cost efficient way and in proper time can gets all type of solutions for a particular project management system with proper roadmap and real time technology। এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আপনি আপনার মতো জাস্ট সাজিয়ে নেবেন।
ঠিক আছে, এখানে অনেকগুলো কথা বলা আছে, এবার এটাকে আপনি আপনার মতো করে সাজিয়ে নিয়ে বলবেন। ক্লিয়ার? বাট এই টার্মিনোলজিগুলো থাকে, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মেথড অফ রিডিং। ক্লিয়ার? আপনাকে কিন্তু হুম, এরকম কথা যদি আপনি এখন এই পুরো এই জিনিসটাকে মুখস্থ করতে যান না, ঠিক আছে, তাহলে প্রবলেমটা কী হবে বলুন তো, আপনি কিচ্ছু মনে রাখতে পারবেন না। ঠিক আছে, যার জন্য কী হয়, আমি বলেছিলাম একটা কথা, হয়তো আপনার রয়েছে সেটা, যে একটু কমিউনিকেশন নলেজ দরকার। ঠিক আছে, আপনি এবার এই যে অ্যাসাপ মেথোডোলজি, আপনি যে কোনো জায়গাকার ডেফিনেশন আপনি এক আপনার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখুন। অ্যাসাপ মেথোডোলজি হেল্প আস টু গেট দ্য রোড ম্যাপ for optimizing and continuous implementation of SAP business process. Optimizing না বলে আপনি get help us to get the provide help us to continuous implementation SAP system. I think ম্যাডাম এসে গেছে, দাঁড়ান তো এক মিনিট। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा मैडम, एक तो चीज़ बोलिए, कौन सा टाइम इवनिंग में आपके लिए सुविधा है? मैम सर मुझे अभी थोड़ा 6 बजे से अगर होगा तो 6 बजे से अच्छा होने होगा, का कोई क्योंकि सवाल ही नहीं है, छोड़ दीजिए उससे आगे। उससे आगे अगर होगा तो 4 बजे से पहले, मतलब 3 बजे अगर होगा, 3 बजे हो सकता है सर ये टाइम। 3 बजे या 2 बजे, 2 बजे, 3 बजे। नहीं, 2 बजे नहीं होगा, 3 बजे मतलब अराउंड 3:15 से हो सकता है, 3:15। 3:15 से, हाँ सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि उसका क्लास खत्म होते होते 5:30, 5:40 ऐसे हो जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करिए, क्यों ना 5:30 होने से 5:40 होने से मेरा प्रॉब्लम यही है ना, मेरा उसके बाद हाँ हाँ, फिर मेरा और भी क्लास आगे का रहता है ना, आपका क्लास उस भी। क्लास है उसके लिए। हाँ लेकिन आपको मैं कुछ अच्छा तरीके से जो देना है दे नहीं पाऊँगा। ठीक है ना? तो ये हाँ ऐसा हाँ करके क्लास करना ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो इट इज़ हाँ बेटर टू स्टार्ट 3:15 फ्रॉम नेक्स्ट डे, नंबर वन। ओके। नंबर टू, हाँ देखिए मेरा जो घर है नज़दीक में एक तो लड़का रहता है। ठीक है ना? वो भी आप जैसे हाँ। क्लास चालू किए थे उसी टाइम ही क्लास चालू किए थे ना, उनका भी अभी अच्छा। प्रोजेक्ट जैसा जितना आपका मतलब कंप्लीट हुआ था ना, ठीक है ना, उतना ही हुआ तो था। उनका भी उतना हुआ है? उतना ही हुआ है। ठीक है ना? तो अच्छा अच्छा। उनको भी हम आज बुला लिया है इस क्लास में। ठीक है ना? तो अच्छा अच्छा। दोनों को एक संग देखा दूंगा, अगर उनको सूट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हाँ एक तो हाँ डिसाइड किया है, जैसा ये 12 प्रोजेक्ट हाँ जो दिया है ना आपको, ठीक है ना, हाँ सर। एक हाँ 12 प्रोजेक्ट मैं इतना दिन से इतना स्टूडेंट को आपको भी बहुत बहुत बोला था, कई भी हाँ स्टूडेंट कि से ये रेस्पॉन्स नहीं मिला, और एक बार भी हमको नहीं बोला नहीं हमको ये प्रोजेक्ट नंबर वन हो गया है ऐसा के। तो डोंट टेक अदरवाइज, नो बॉडी नोज हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू कीप इट माइंड। ओके। हाँ हाँ तो हाँ आज का दिन में यही मेरा ड्यूटी बन गया है। तो आप लोगों को सबको ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ना, द वे ऑफ रीडिंग एंड हाँ वे हाँ ऑफ कीप इट मेमोराइज, कैसे मेमोराइज करना है। ठीक है ना? ये हम हाँ सर। 12 प्रोजेक्ट को वन आफ्टर अनदर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप भी आप एक बार दो बार बोली थी जो हाँ जो सर। सब दिखा हाँ दीजिए, हम लोग तो करते हैं लेकिन थोड़ा प्रेशर बन जाते हैं। ठीक है ना? तो आप एक काम हाँ करिए, हाँ। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वन पहले खोलिए, ओपन करिए। ओके सर। क्यों ना इस महीने के अंदर सब खत्म करना है, दिसंबर से S/4HANA चालू करना है। सर हाँ, लेकिन ये तो आप अपनी साइड से बोले हैं, लेकिन आप जितना भी बोले, हम लोग को ही अपना पूरा एफर्ट देना है। तो आप अगर जैसे कि हम लोग लास्ट वीक में बोले थे कि प्रोजेक्ट 1 2 खत्म होगा, लेकिन 7 दिन में पूरा 2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फिर उसको पढ़ रही हूँ, फिर आगे भी पढ़ रही हूँ।
तो ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग आपका वेट ना करके हम लोग खुद से प्रिपरेशन करके हम लोग का डाउट जैसे क्लियर करने দেখে का। ফার্স্ট जो থিং जो है ना, এই শুভজিৎ শুনতে পাচ্ছ তো সব? হ্যালো, हेलो। হ্যাঁ স্যার শুনছি শুনছি সব শুনছো তো শুনছি। তুমি সব কথা? হ্যাঁ স্যার শুনছি। ঠিক আছে, বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, না शुभजीत, না ঠিক आप আছে। हिंदी में कंफर्टेबल है? मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, कोई ঠিক আছে, दिक्कत ও नहीं আমি होगा। বলে দেবো ম্যাডাম, ডোন্ট वरी। ओके, डोंट वरी। ठीक है मैम। ओके, ठीक है सर। हाँ। देखिए, ये सबसे प्रॉब्लम जो है ना, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब वे ऑफ रीडिंग हाँ। एंड वे ऑफ डिलीवरिंग, दिस इज अ बिग फैक्टर। ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, प्रोजेक्ट वन डॉक्यूमेंट खुले, हाँ सर। हाँ। फर्स्ट क्या लिखा है देखिए। एएसएपी मेथोडोलॉजी। तो इसके बारे में तो पहले मैं फर्स्ट दिन में एक बार समझाया था, और तो 26 पेजेस का डॉक्यूमेंट भी दिया था, राइट? एंड हाँ दैट हाँ वाज सर। टोटली इन डिटेल, राइट? हाँ बट अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय एसएम मेथोडोलॉजी, डू नो एनीथिंग अबाउट एसएम मेथोडोलॉजी, तो सबसे बड़ा गलती जो है ना, इस लाइन वन आफ्टर अनदर इसको रीड करना और ट्राई टू मेमोराइज इट। इट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रोसेस। फर्स्ट क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में देखिए, ऐसा मेथोडोलॉजी प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर ऑप्टिमाइजिंग कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएपी सिस्टम इन द बिजनेस प्रोसेस। आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सारसाइज करना पड़ेगा। শুভজিৎ ভালো করে শুনে নাও, ঠিক আছে? হ্যালো हाँ। হ্যাঁ স্যার শুভজিৎ, শুনছি, বলুন। ভালো করে শুনে নাও। কি করতে হবে, এই ওয়ার্ড ফাইলটা এই পিডিএফটা খুলবে, সঙ্গে একটা आइदर मैनुअली লেখো अथवा वर्ड লেখो। मैडम सुन रहे हैं ना? इस हाँ पीडीएफ को सर। हाँ। खोलना है और आपको वर्ड हाँ। फाइल भी लेना है। क्या आपको मैनुअली भी लिखना है, जैसा आपको सूटेबल, आपको वर्ड फाइल में लिखना ही अच्छा है, ठीक है ना? हाँ नंबर सर। वन करके, नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एसआप मेथोडोलॉजी, राइट? हाँ सर। आपका एकदम ओन लैंग्वेज में लिखिए, इससे सिंपली पॉइंट आपको लेना है। क्या पॉइंट है? दिस मेन पॉइंट, रोड मैप ऑप्टिमाइजिंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना? ये दोनों मेन पॉइंट है। तो क्या लिखना है? ऐसा मेथोडोलॉजी दैट इज एक्सेलरेटेड एसएपी helps us for proper roadmap and as well as continuous implementation in SAP system for any business process, एकदम own language में जो आपके लिए सुविधा है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, this methodology help us to generate successfully full नहीं करिए, successfully cost efficient way and in proper time delivery all the project solution। we नंबर इसको थोड़ा घुमा के लिखिए, we can get हाँ। cost efficient proper successful process, generate successful process and in on time ना करके in time कर दे, in time of all delivery project we can get in proper time every delivery, every solutions cost effectively and successfully। थोड़ा घुमा के लिख दीजिए, ठीक है? हाँ। हाँ। क्लियर? हाँ सर। ये फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इतना दिन होने के बाद। नेक्स्ट क्या लिखा है? होल टीम विथ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोड मैप एंड रियल टाइम टेक्नोलॉजी टू डिलीवर वेल एक्नॉलेज्ड प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बाय दिस वे we can get real time technology based process in a systematic way, स्ट्रैटेजिक मैनर। in a systematic way
एज पर स्टैंडर्ड, एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड, एज पर নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে না? সো যে তিনটে পয়েন্ট বুঝতে পারলে কি বার করতে হবে তোমাকে, যা বুঝতে পেরেছি। বাট इट इज एन एक्सरसाइज। 99% पीपल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, इसको पूरा रीड करना। तो अगर इसको पूरा रीड करने के लिए जाएंगे तो ये टोटल अराउंड 81 पेजेस का है। आपका हाँ लाइफ बीत जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगी कभी। एवरीथिंग इज ए सिस्टम, इधर सब कुछ बोला স্যার हुआ है, यू हैव टू। স্যার একটা কথা ছিল, हाँ बोलूँ। স্যার বলছি আপনি স্যার এইগুলো তো স্যার পড়িয়ে দিচ্ছেন, ঠিক আছে, এগুলো পড়িয়ে দিন। আমরা যেমন সেই আগে যেমন ইতিহাস কিংবা ভূগোল যেরকম করে আমরা ছোট করে কেটে Exactly লিখতাম, like history and geography, you have to read and make it a point on it, right? স্যার আমার শুধু স্যার খালি কনসেপ্টটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে পুরো জিনিসটা, তাহলে আমি একটু ছোট एकदम করে दिते পারবো। मैडम, शुभ जी हाँ जो सर बोला हाँ। है, जैसा पहले हम लोग हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते थे, ठीक है ना, बट द उस टाइम में जो एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट एवरीथिंग वी हैव टू कीप इट माइंड एंड डिलीवर। बट हेयर हाँ 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 we need to keep mind the exact point क्या है, and we have to deliver this as per our own language. There is no need to memorize all the things in it. It is impossible for everyone. yes sir, we can make it in our own words. Yes, own words. I think these types of class will helps use all to get proper success for preparation of interview preparations. Next देखिए ASAP methodology roadmap. What is the roadmap for ASAP methodology? It is nothing but the steps. कौन सा steps है, कितना steps है? ASAP methodology roadmap continuous step wise, देखिए मैं बिना देख के बोला, step wise guide incorporating project experience right from the start अर्थ, इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस। देखिए नीचे है 5 फेजेस। फेज क्या है? ये इसको याद रखना, 5 फेज को। जैसे इम्प्लीमेंटेशन पे नीचे लिखे हुआ है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव सपोर्ट। ठीक है, दिस इज एक्चुअल योर रोड मैप, राइट? क्या क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, ठीक है ना? ऐसा एडवांटेज शायद आपको Okay, sir. पूछेगा नहीं कोई, ठीक है ना, शायद ही, मैं इतना बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन, गो लाइव सपोर्ट। ये जो 5 जो पॉइंट है ना, इस 5 पॉइंट अगर आप मेरा डॉक्यूमेंट देखें, क्या कोई भी इंटरनेट का डॉक्यूमेंट देखे, तो नियर अबाउट 20 पेजेस, 30 पेजेस, 40 पेजेस ऐसा ऐसा करके डिस्कशन है, राइट? बट इधर क्या लिखा है? एकदम समरी करके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन? its primary focus is getting projects started, identifying team members, developing a high level plan, gap analysis, 13% activities। तो क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन? प्रोजेक्ट सब मेन पॉइंट क्या है? यू हैव नो वर्क इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। कंसल्टेंट लोगों का कोई एंट्री नहीं है। सबसे শুভজিৎ মাথায় রাখবে কিন্তু প্রজেক্ট প্রিপারেশন ফেজে এসএপি কনসালটেন্টদের কোনো এন্ট্রি নেই। তুমি যখন, তোমাকে যদি ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে দেয় না প্রজেক্ট প্রিপারেশন ফেজে কি কাজ করেছো, আর তুমি যদি এই ডেফিনেশনটা বলে দাও, তাহলে জানবে যে তোমার ওখানে ইন্টারভিউ শেষ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। वेरी वेरी केयरफुल, এটা কিন্তু একদম মানুষকে বোকা বানানোর কোশ্চেন। मैडम अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द व्हाट यू हैव डन इन लास्ट प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, आपको तो याद में है, आप एकदम बोल दिए इस टाइम में हम लोग ऐसा ऐसा किए थे, प्लानिंग किए थे, बस हो जाएगा, बल्ले बल्ले एकदम पूरा उस टाइम खत्म इंटरव्यू। इसमें आपका कोई काम नहीं है, आप सीधा आंसर है।
I have हाँ 3 years less experience, and I am a purely SAP consultant, and I don't have any entering in project preparation phase. But I know what actually done in project preparation phase. It is a primary phase before project starting. In this phase, industry and client both are meeting. Client asking and wants to see the team members, and implementation, for implementation team they need to provide the list of the consultant along with their designations and experience. And in this period, both team, basically implementation team, have to find out the gap analysis, have to find out the gap and analyze the gap. Okay, 13% एक्टिविटी डोंट नीड टू एक्सप्लेन. अगर आपको कोई पूछे कि 13% है क्या, 15% नहीं है क्या, 10% नहीं है क्या, बस तब तो हो जाएगा. इसमें कोई ये जो 13% है, दिस इज इमेजिनरी. मेरा हिसाब से 13% है, तो दूसरा पर्सन नहीं 15% है. तो डोंट नीड टू मेंशन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड मैटर. मैं आपको ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, इसको नोट करके रखिएगा. और मैडम वो सब डाउनलोड करके रखे ना, जितना वीडियो भेजा था वो सब हट जाएगा. हेलो हेलो. हाँ सर. वो सब हाँ वीडियो डाउनलोड ले लिए ना, जो जो जितना सबको भेजे थे. हाँ सर. ठीक है. बिजनेस ब्लूप्रिंट नेक्स्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाट इज द फंक्शन? अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बिजनेस गोल क्या ऑब्जेक्टिव है आपका बिजनेस का, ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, नीड एंड सपोर्ट द गोल्स. तो इतना ये भी लाइन आपको याद रखना जरूरी है. इन दिस प्रोसेस वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कंपनी wants to or needs to get from SAP, and we have to determine that support for their convenient. बस. आप बिजनेस ब्लूप्रिंट के लिए अगर फाइंड आउट करने के लिए जाए गूगल में, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा डॉक्यूमेंट आ जाएगा. लेकिन इतना इजी छोटा एकदम 2 लाइन का अंदर लिखा हुआ है. आप कभी ऐसा करके पढ़ी थे क्या मैडम? हाँ सर. मतलब इतना ऐसे क्वेश्चन वाइज करके नहीं, लेकिन ये सब इसको क्वेश्चन वाइज लेना है. व्हाट इज द फंक्शन द रियलाइजेशन फेज, अगर कोई पूछे, टू इम्प्लीमेंट ऑल द बिजनेस एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द बिजनेस ब्लूप्रिंट. You customize the system step by step, work package, so on. So इतना बोलना है. What we have done in the business blueprint phase, we need to carry out in the system in the realization phase. So বুঝতে পারলে what is the function of the realization phase? বুঝলাম. বিজনেস ব্লুপ্রিন্টে তুমি যা লিখেছো, যা কনসালটেন্টটা তৈরি করেছে, আমাদেরকে সেটা সিম্পলি মেশিনে টাইপ मतलब মেশিনে ফাংশনালি করতে হবে. দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন রিয়ালাইজেশন স্যার. ম্যাডাম? हाँ सर. हाँ ক্লিয়ার? क्लियर. What is the function of the final preparation? Its purpose to compute testing, end user training, system management, cutover activities. ये जो 4 पॉइंट बोले ना, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे मेन पॉइंट है एंड यूजर ट्रेनिंग. एंड यूजर टेस्टिंग जो लिखा है ना, एक्चुअली एंड यूजर ट्रेनिंग होगा और टेस्टिंग भी है. एंड यूजर ट्रेनिंग मीन्स टेस्टिंग. वो लोग टेस्टिंग बोल दे, एक संग वर्ड को फिनिश किए. बेसिकली पहले आप लोग को एंड यूजर को ट्रेनिंग देना है, तो अब ना लोग टेस्टिंग करेंगे. हाँ. You need to
train the end user in a proper way and have to get the UAT नोट करके रखिएगा ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको UAT प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो एसएप 1 एसएप 2 बोल के जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें भी लिखा हुआ है UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टेस्ट। उन लोगों से एक्सेप्टेंस लेना है जो यस वी आर रेडी टू स्टार्ट एसएपी ओके वी आर मेक फ्री वी आर लर्न সুরজিৎ বুঝতে পারলে স্যার মানে স্যার আগের দিন যেটা করছিলাম সাইন অফ আমাদের যেটা করতে হয় সাইন আপটা অন্য সেটার জিনিস আগে ইউএটি আলাদা জিনিস সাইন আপ না যেটা স্যার তার ক্লায়েন্ট করবে আগে ইউএটি ইউএটিটা হয় বেসিক্যালি এন্ড ইউজারদেরকে ট্রেনিং পারপাসে এন্ড আচ্ছা তো ইউজারদের এই ইউজারদের তো ট্রেনিং ইমপ্লিমেন্টেশনটা এ হওয়ার পরে ওদেরকে দিতে হবে না যে যারা যাতে ওরা ইউজ ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হওয়ার পারে পরে না বিফোর ইমপ্লিমেন্ট मतलब গো লাইভের আগে দিতে হবে হ্যাঁ গো লাইভের আগে দিতে হবে হুম সেটা দিতে হবে কাট ওভার অ্যাক্টিভিটিস অলরেডি কাট ওভার বুঝিয়েছিলাম শুভজিৎ हेलो না স্যার কাট ওভার হয়নি मैडम काट ओवर आपको हुई थी क्या ना 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 नोट करके रखिए काट ओवर शुभजीत नोट করে রাখো কাট ওভার অ্যাক্টিভিটিস বোঝাতে হবে ঠিক আছে আমাদের ডকুমেন্টেশন আছে दैट इज डिफरेंट इशू আমাকে বোঝাতে হবে তুমি डॉक्यूमेंटेशन बुझते पारबे ना मैडम आप लोगों के पास आपके पास शायद है काट ओवर का लेकिन आपको अगर नहीं है तो देना पड़ेगा अगर वो भी दैट इज डिफरेंट इशू बट हैव टू अंडरस्टूड द काट ओवर एक्टिविटीज राइट ओके सर हाँ नेक्स्ट अपन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट अच्छा नेक्स्ट फाइनल प्रिपरेशन जो है बेसिकली कार्ट ओवर एक्टिविटीज है यू विल रेडी टू रन योर बिजनेस एट प्रोडक्शन सिस्टम मतलब बिफोर गो लाइव वी नीड टू फिनिश दिस स्टेप्स ओके एंड फाइनल गो लाइव एंड सपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड pre-productive environment to be successful and live operation. Go live and support means hand over the software to client. ठीक है hand over the software to client. ये जो सर सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रॉम ए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्री प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट टू बी ए सक्सेसफुल एंड लाइव प्रोडक्टिव ऑपरेशन हाँ ये थोड़ा माने जैसे अधूरा अधूरा लग रहा है नहीं बोल जैसे रहा हूँ कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हुआ है ओरिएंटेड pre-productive environment to be successful. pre-productive environment successful क्या लिखा है देखिए गो लाइव जाने से पहले प्री गो लाइव बोल के एक तो एनवायरमेंट में एक टोटल चीज़ को सेंड करके एसएपी कंसल्टेंट लोग देखते हैं गो लाइव अगर हो तो ये कैसे लगेगा क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या सॉल्यूशन एवरीथिंग दैट इज वाई प्री प्रोडक्टिव एनवायरमेंट वर्ड यूज़ किया ठीक है ना बिफोर गो लाइव वो लोग प्री प्रोडक्शन सर्वर बोल के तो सर्वर है वो बेसिकली डेवलपमेंट में इसमें ही होता है क्या ना टेस्टिंग में होता है उसमें रख के वो लोग टेस्टिंग करके देखते हैं अगर वो ठीक ठाक लगता है तो उसको गो लाइव में भेजते हैं ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है ना जो टोटल प्रोजेक्ट इट इज़ ए आई टी लिखा है शायद इसको कोई चीज़ छूट गया होगा देखना पड़ेगा ठीक है ना तो प्रोजेक्ट इट इज़ फ्रॉम द प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऐसे कुछ लिखा है कुछ ठीक है ना प्री प्रोडक्टिव टू बी सक्सेसफुल एंड लाइव मतलब प्री प्रोडक्शन में जो सक्सेसफुल लग रहा है उसको फाइनली गो लाइव में भेजना एंड उसको लाइव में लाना और कुछ नहीं है ठीक है ना हाँ हो गया नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज इसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स डिस्कशन किया है वी आर going to collect business requirement business process business area department customer so and so ठीक है ना the understand the phase as is ये बहुत important है आप लोगों के लिए what do you mean by as is हाँ study the existing business process of the client SAP consultant is supposed to go client place study it thoroughly working on it need to prepare শুভজিৎ হ্যাঁ স্যার অ্যাজ ইজ ডকুমেন্টটা কি হ্যাঁ, স্যার। ভালো করে বুঝে নাও ফার্স্ট
मैडम आपको समझा देते थोड़ा उनको समझा दीजिए। যখনই हाँ তোমার सर। প্রজেক্ট প্রিপারেশন ফেজ স্টার্ট হয়ে গেল মতলব ফিনিশ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এসএপি কনসালটেন্টরা কি করে, ক্লায়েন্টের টোটাল বিজনেস প্রসেস মানে যেখানে যেখানে তার প্ল্যান্ট আছে, যেখানে আদার্স বিজনেসে এভরিথিং, তারা সেসব জায়গায় যায়, কি প্রসেসে ক্লায়েন্ট বিজনেসটা করছে সেটা তারা নোট ডাউন করে। ঠিক আছে, এবং এইটাতে কী কী চ্যালেঞ্জ ফেস করছে, কী কী প্রবলেম ফেস করছে, সব কিছু নোট ডাউন করে। ঠিক আছে, নোট ডাউন করার পর তারা একটা আলটিমেটলি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ডেটাবেস তৈরি করে, দ্যাট ইজ কল্ড কিউ&ডিবি। ঠিক আছে, এবার এখান থেকে অ্যাজ ইজ মানে অ্যাজ ইট ইজ। এবার এই অ্যাজ ইজের ফাংশন কি, ওইখানে ওরা যে যে প্রবলেমগুলো ফেস করছে বা যে যে সলিউশনগুলো চাইছে, সেই প্রবলেমগুলো বা সেই সলিউশনগুলো এসএপিতে ওদের আছে কি নেই। ঠিক আছে, ओके। দেখা हाँ গেল हाँ। যে 40টা রিকোয়ারমেন্ট আছে, অ্যারাউন্ড 35 ইজ ওকে, কোনো প্রবলেম নেই, দ্যাট ইজ কল অ্যাজ ইজ। শুভজিৎ বুঝতে পারলে কি পারলে না? স্যার বুঝতে পারছি, বাট স্যার যে 5টা রিকোয়ারমেন্ট পরে ফুলফিল হলো আসছি, না। আগে আগে 35কে সামলাও। ঠিক আছে ওকে ম্যাডাম, স্যার, ওকে স্যার। बेसिकली हाँ आफ्टर सर। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ओके, सर मैं समझ गई। टोटल समझ टीम गई। मतलब सक्सेसफुली हाँ। they will go to plant and so many departments are there, they will ask our business teams मतलब SAP client teams what are the problem they are facing, what are the challenges they are facing, what they need to solution, what kind of solution they need, what kind of benefit they are seeking from SAP, everything SAP team will note down and they will finalize it. This is the exact requirement of the client and ये जो फाइनलाइज होगा इसके ऊपर बेस करके वो लोग एसएपी में देखते हैं कि कौन सा पार्ट ऑलरेडी है, जो चीज़ ऑलरेडी है दैट इज कॉल्ड एज इज। ओके, नेक्स्ट हाँ। once it done consultant has to provide the client with the solution, the input एकदम सेम जो चीज़ बोला है, successful to functionally improve the existing process which help to reduce the cost operation in future improvement their operation, this is called 2B। ठीक है ना, जो हाँ सर। प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसको सॉल्यूशन करना है, कैसे सॉल्यूशन करें, दैट इज कॉल्ड 2B। एज इज एंड 2B के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड गैप। गैप एनालिसिस। শুভজিৎ বুঝতে পারলে গ্যাপ কাকে বলে? 40টা প্রবলেম টোটাল হুম, শর্ট স্যার। আউট হলো, দেখা গেল 35টা প্রবলেম অলরেডি রয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যাজ ইজ, অ্যান্ড যেটা করতে হবে দ্যাট ইজ 2B। এই 2Bটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল গ্যাপ, যেটা और তোমাকে অ্যানালিসিস করে ফাইন্ড আউট করতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিটার্ন, তোমাকে রিটার্ন দিতে হবে যে কতদিনের মধ্যে হবে, এরকম না যেদিন প্রজেক্টটা নিলে আর তারপর পরে হবে, এরকম ব্যাপার নেই। হ্যাঁ স্যার, थोड़ा ওগুলো सा তো सर না मेरा बात শর্ট আউট सुनिए। করলে তো বলতে তো উनको উनको শুনিয়ে বললে বুঝতে পারলে তুমি সুজিত? अ, হ্যাঁ স্যার, মানে ওই যে বাকি যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে ওটা যতদিন না পূরণ হচ্ছে তারপর তো মানে প্রজেক্ট স্টার্ট হবে যতদিন না না। পুজোর পূরণ হচ্ছে না, তোমাকে লিখে দিতে হবে কনসালটেন্ট লোকদের টিমকে যে কত দিনের মধ্যে হবে, কতদিন পূরণ হচ্ছে, মানে তুমি 2 বছর ধরে পূরণ করবে নাকি? না। ঠিক আছে मैडम, देखिए हाँ सर। 40 प्रॉब्लम्स हुआ, 35 हाँ। ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, जो जो सिस्टम जैसा है, Sort out सिस्टम है। ओरिएंटेड है उसमें है, जो 5 है दैट इज कॉल्ड गैप एंड यू हैव क्लाइंट टीम मतलब सॉरी इम्प्लीमेंटेशन टीम हैव टू गिव द confirmation within how many days, how many months, how many weeks it will solve। ओके, दैट इज गैप। वो गैप को सॉर्ट आउट करने का क्या क्या है, एवरीथिंग दे हैव टू। ओके। हाँ सर। हाँ हाँ। नंबर हाँ नेक्स्ट, सर। बिजनेस सर ब्लूप्रिंट। गैप मतलब बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन द गैप मतलब टाइम ड्यूरेशन, गैप मतलब द डिफरेंस बिटवीन एज इज एंड 2B इज कॉल्ड गैप, एज इज एंड 2B इज कॉल्ड गैप,
नॉट टाइम ड्यूरेशन। अगेन एज इट इज कितना है 35 है, कितना करना है फिर 540 बनाना है, कितना गैप हो गया 5, दैट इज कॉल्ड गैप। ओके सर, हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है ना। गैप मतलब जो हम लोग नहीं, हम लोग का अभी अभी जो एसएपी अवेलेबल का नहीं है नॉर्मल सोल्यूशन में सॉफ्टवेयर में, नहीं। जो मतलब नॉर्मल एसएपी सॉफ्टवेयर में, एंड वी हैव टू मेक इट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आइदर कस्टमाइजिंग और टेक्निकली व्हाट एवर मे बी। ओके सर, हाँ। बिजनेस ब्लूप्रिंट 13% परसेंटेज जो है ना, इसमें ध्यान ज़्यादा मत देना, इसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है। हियर इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, स्टेट segregating all the information and mentioning step by step preparing the design and diagramming document, BB BPDD, business process design document, based on BBDD business blueprint prepared for individual modules। ठीक है ना, इतना नॉलेज रखने का जो नहीं है। segregating all the information and mentioning the step by step preparing design and diagrammatic documents। ठीक है ना। बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज इज नथिंग बट, जो पहले ऊपर में जो बोला था ना, व्हाट इज बिजनेस ब्लूप्रिंट, अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल्स, बिजनेस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी टू डिटरमाइन द बिजनेस रिक्वायरमेंट नीड टू सपोर्ट देम, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, उतना याद रखना। ठीक है, हाँ सर। क्लियर। रियलाइजेशन फेज देखिए, हाँ, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन फेज देखिए, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट बेस कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 1 बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। नंबर 2 मेन कॉन्फ़िगरेशन, एंड नंबर 3 है इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन। শুভজিৎ এই সমস্ত পড়েছিলে কোনোদিন? পুরো তো তোলা ছিল সব মনে হচ্ছে। ফার্স্ট देखिए কি কি আছে। बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस मतलब बेस एरिया, फाइनेंशियल ईयर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, पोस्टिंग पीरियड, सो एंड सो। ओके। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल एवरीथिंग, पोस्टिंग पीरियड एंड एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नंबर 2 मेन कॉन्फ़िगरेशन, सब मॉड्यूल्स ARAP AF। ठीक है ना। हाँ हाँ इंटीग्रेशन, combination between two modules, SAP FIMM integration, FISD integration। শুভজিৎ, हाँ सर। रियलाइजेशन पार्ट में। রিলেশন পেজ বুঝতে পারলে কি কি কাজ করা হয়, व्हाट आर द एक्चुअल पार्ट वी आर डूइंग इन द रियलाइजेशन पेज। अगर कोई তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কি বলবে? তুমি যদি পরিষ্কার ডেফিনেশনটা বলো জিরো, তখন এখানে কত সুন্দর লেখাটা দেওয়া আছে দেখেছো, বেস কনফিগারেশন, মেইন কনফিগারেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন কনফিগারেশন। আচ্ছা স্যার, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার, কোশ্চেন হ্যাঁ ছিল। বলো। বলছি স্যার, এখানে বেস কনফিগারেশনে বিজনেস এরিয়া, ফাংশন এরিয়া, এই যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট যেগুলো আছে, হুম সাব মডিউলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, পেয়েবল, হুম। এটা স্যার এএফটা কি? এফটা বেসিক্যালি এটা এ করা উচিত एसेट ছিল, एक्चुअली এটা এ एस এফ করে দিয়েছে, এ एस করা एस ছিল, এ অ্যাক্টিভিটি সরি। অ্যাসেট অ্যাকাউন্টিং। হ্যাঁ স্যার ওটা আমি তাই স্যার ভাবছেন যে অ্যাসেট অ্যাকাউন্টিং তাহলে কার আন্ডারে আসছে, হুম ওটা তো একটা বড় পার্ট না। হুম। सर, हम लोग का जो बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में ग्लोबल हम लोग सेटिंग्स का जितना बेसिकली है, एग्जैक्टली। ग्लोबल सेटिंग्स का बेसिकली, हाँ, और मेन कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है हम लोग का सब मॉड्यूल APAR ARAP AF एसेट एसेट अकाउंटिंग अकाउंटिंग एवरीथिंग, सब, इंक्लूडिंग बैंकिंग, एवरीथिंग। इंक्लूडिंग बैंकिंग ए बेसिकली और टैक्सेशन। ए बेसिकली ARAP जो है ना, अकाउंट फाइनेंशियल चीज़ों वो हो सकता है। ठीक है ना, अकाउंट्स फाइनेंशियल, हाँ हाँ जैसा बैंक ओरिएंटेड। ओके, ये भी मीनिंग है इसमें। हाँ। और इंटीग्रेशन में कंबाइन बिटवीन टू और मोर मॉड्यूल्स
इसमें एसिड भी आएगा, क्यों ना, एसिड इज टोटली सेपरेट मॉड्यूल, एसिड इज नॉट एसेट इंक्लूडेड अकाउंटिंग, हाँ। इन एफआई। মানে একটা 3 নম্বর ইন্টিগ্রেশন কনফিগারেশন আছে। ওখানে অ্যাসেটটা আচ্ছা ওকে তুমি এখন বলার দরকার নেই, বাট আচ্ছা ঠিক আছে। এটা অ্যাসেটটা এখানে ঢুকে যায়, বাট মেনলি एफआई के साथ एमएम एंड एसडी बोथ। हम्म। ये जो टेस्टिंग सिस्टम है ना, यूनिट टेस्टिंग, वो जो डेफिनेशन जो दिया हुआ है, अब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें जो चार्ट दिया था ना, तो 280 पेजेस का मैडम, हाँ सर, हाँ कहाँ से शुरू हाँ, होता रियल टाइम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर रीडिंग करेंगे बहुत सारा चीज है, क्लैरिफाई हो रहा एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग टू 200 अराउंड 70-80 पेजेस का रहेगा, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट 4 करके, रियल टाइम प्रोजेक्ट 1 है वो, ठीक है ना। তুমি প্রজেক্ট ওয়ানের ডকুমেন্টেশন দেখবে না, তোমাকে যেটা মোটা ডকুমেন্টেশন দিয়েছিলাম है। पापा সুরজিৎ, সুরজিৎ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন, শুনতে পাচ্ছি। তোমাকে যে একটা ডকুমেন্টেশন দিয়েছিলাম না, রিয়েল টাইম প্রজেক্ট 1, রিয়েল টাইম প্রজেক্ট 2, রিয়েল টাইম প্রজেক্ট 3, রিয়েল টাইম প্রজেক্ট 4, হুম হুম হুম। এই ডকুমেন্টেশন এই ম্যাডামকে পড়াতে গিয়েই ফাইন্ড আউট হয়েছিল। वो एकदम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसको अच्छे এখানে से তুমি अगर যা गो थ्रू দেখছো करेंगे সমস্ত কিছু तो। ডেফিনেশন তুমি যদি চেষ্টা করো ফাইন্ড আউট করতে পারবে। জাস্ট এই যে ডকুমেন্ট রিয়েল টাইম এই প্রজেক্ট ডকুমেন্ট যা আছে না, এটাকে পড়ো, এইখান থেকে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলোকে ফাইন্ড আউট করো, করে লিখে ফেলো, ये দেখবে। प्रोजेक्ट, एक्सक्यूज मी सर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ ऐसा मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट ये सब में थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, हाँ 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 जिसके हाँ कारण बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो जो रियल टाइम इसीलिए प्रोजेक्ट तो मैं डॉक्यूमेंट आज को इसको उसमें रीडिंग का इतना अच्छे से। फैसला किया ना, जो इसको रीडिंग करके समझा देता है कैसे पढ़ना है। हाँ सर, तो ये ये फाइनल जरूरी था। प्रिपरेशन क्या है, वंस क्लाइंट गेट्स टेस्टिंग एंड गेट एनी bugs, मतलब एनी प्रॉब्लम, bug means problem, by the end user, they forward to the consultants by mails, end user testing, regression testing, system tests, everything you have to keep it mind, regression क्या है, system क्या है, integration और सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है ना। cartwar activities are done, testing from the client is hide, cartwar activities দেখো এখানে কি লেখা আছে, uploading all the master transaction data from non SAP to the quality server, ठीक है। হোয়াট ইজ কাটওয়ার অ্যাক্টিভিটিস, আপলোডিং অল দ্য মাস্টার ডেটা, তোমার পুরোনো সিস্টেমে যে মাস্টারটা ছিল সেগুলোকে তো পুরো নন এসএপিতে ছিল, সেগুলো তুমি এসএপিতে আপলোড করলে, ঠিক আছে। কোয়ালিটি সার্ভার, সেশন মেথড, বিডিসি, যেটা বিডিসি প্রসেস এলএসএমডব্লিউ পরে বুঝবে। দিস ইজ ফার্স্ট পার্ট, ফার্স্ট কনফিগারিং অ্যান্ড কাস্টমাইজিং ডেটা মুভ টু দ্য প্রোডাকশন সার্ভার, দেন কাটওয়ার অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। তাহলে পেয়ে গেলে কী কী করতে হচ্ছে, कि कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजिंग डेटा मूव टू प्रोडक्शन सर्वर, देखो কোয়ালিটিতে নিলে নিয়ে সেখান থেকে প্রোডাকশনে পাঠাচ্ছ, দেন কাটওয়ার অ্যাক্টিভিটিস। मैडम समझ में आया? हाँ सर, हाँ। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काटवार एक्टिविटीज। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे काटवार होता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद साइन अप मीटिंग, वो तो साइन अप नॉर्मली है। गो लाइव सपोर्ट, सीनियर लेवल पर्सन को सपोर्ट करना पड़ता है, जूनियर लेवल को। टिकट बनता है, टिकट का प्रोसेस क्या है वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक यूज़र लेवल का है, कोड यूजर्स, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी, ये तो आप लोगों को तो याद में ही, ठीक है ना। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू मीन बाय बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट रुको ना। हेलो, साढ़े छः बजे से बाद हमको कॉल करूंगा, डोंट वरी। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू मीन बाय बेसलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अब वीडियो आज रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, it is the configuration for which we don't need to depend the other module, very very important। শুভজিৎ ভালো করে শোনো এই জায়গাটা, it is a configuration which is specific to one module only, FI, no need to get any kind of help from SD or MM, MM only FI,
only SD, only MM. This is called baseline configuration. एक सेम टू सेम मैडम ये आंसर देना है आपको. हाँ सर. Final configuration, integration between modules. It is configuration for which we need to depend on the other modules. Clear? Test case. What is test? How to test? Expected result, actual results. What is the function of the test case? This is the summary. टेस्टिंग का सिस्टम क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग से शुरू होता है. फर्स्ट व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? मैं सिखाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा में. यूनिट टेस्टिंग मीन्स डेवलपमेंट सर्वर के अंदर जो चीज़ डेवलपिंग होती है वो चीज़ को डेवलपमेंट सर्वर में टेस्टिंग होती है. दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग्स. ओके. শুভজিৎ প্রজেক্ট নাম্বার 1 প্রজেক্ট নাম্বার 2টা ऐसा 1 ऐसा 2টা ভালো করে পড়বে. এখানে यूनिट टेस्टिंग बोला আছে. एक्सेप्ट नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्ट. एक्सेप्टेंस क्या है? इट इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर सिस्टम इज टेस्टेड फॉर द एक्सेप्टेंस respect to user needs, requirement and business process conducted to determine which is whether or not system satisfy the acceptance criteria to enable the user, customers and other authorized entity to determine whether is not acceptance is. इसका मतलब क्या है? जैसा आपका विंडोज 7 है, किसी का विंडोज 10 है. ये जो मेरा हम लोगों का जो सिस्टम एसएपी, ये सिस्टम उस सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है का नहीं कर रहा है. दिस इज नथिंग बट लाइक दैट. इतना चीज को इतना 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 को समरी. दिस इज वन लेग simple word. This is a level of software testing where system tested for acceptability with the other users or requirement. और कुछ नहीं बोलना है. Simple. This is a level of software testing where system is tested for acceptability. और कुछ नहीं है. सर ये कौन सा सर्वर में ये टेस्टिंग होता है? कौन सा? यूनिट टेस्ट एक्सेप्टेंस लास्ट सर्वर में. लास्ट यूनिट टेस्ट एक्सेप्टेंस सबसे लास्ट सब. फर्स्ट शुरू होता है यूनिट से. वो प्रोडक्शन सर्वर में होता है. नहीं, यूनिट टेस्टिंग बेसिकली डेवलपमेंट सर्वर. देखिए एक्सेप्टेंस दो पार्ट है. इंटरनल एक्सेप्टेंस, एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस. ठीक है ना? इंटरनल एक्सेप्टेंस क्या है? नॉन द अल्फा टेस्टिंग. इस इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है ना? Customer acceptance testing is performed by the customer of the organization develop the software. They are the ones who ask the organization to develop the software. Customer testing क्या है ना? कस्टमर जो लोग है बेसिकली मतलब यूजर, वो लोग टेस्टिंग करते हैं. और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? बेटा टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म बाय द एंड यूजर. ठीक है ना? एंड यूजर मतलब जो यूजर लोग हैं वो लोग कैसे दे कैन बी कस्टमर देमसेल्फ. वो लोग कस्टमर भी हो सकते हैं. ठीक है ना? एक कस्टमर टेस्टिंग एंड ये आपको एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस, इंटरनल एक्सेप्टेंस ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं. ये याद में रखिएगा. ठीक है ना? सिस्टम टेस्टिंग, इट इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड. ठीक है ना? इतना डिटेल में आपको शायद पूछेगा नहीं. फिर भी सिस्टम टेस्टिंग क्या है? শুভজিৎ নোট করছো তো? কিছু হচ্ছে না? ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে. व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग? दिस इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद सो एंड सो. बस हो गया. रिग्रेशन टेस्टिंग, very important. Regression testing is the process of testing changes to computer program to make that older program will still work with the new. इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई चेंजेस किए, रिग्रेशन टेस्टिंग नथिंग बट जो चीज़ हम लोग चेंजेस किया वो चेंजेस हुआ है क्या उसको देखना है. और पुराना जो चीज़ है वो भी रखना है, वो काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन. बोथ वी नीड. ठीक है ना? टेस्टिंग चेंजेस कंप्यूटर प्रोग्राम टू मेक श्योर दैट ओल्डर प्रोग्राम स्टिल वर्क्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिग्रेशन टेस्टिंग में जो चेंजेस आप किए
वो काम कर रहा है क्या और पुराना भी काम कर रहा है क्या, विद द न्यू चेंजेस के साथ। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ सर। सर। मैं बोला था दो तो करना है आज, लेकिन आज एक में ही खत्म टाइम। गैप एनालिसिस, everything is here. Through the gap analysis, we'll identify the gaps between how the business process as as it needs against what the package can't do. थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया है। गैप एनालिसिस विल आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन हाउ द बिजनेस प्रोसेस ऑपरेट्स, मतलब बिजनेस प्रोसेस जैसा ऑपरेटिंग होने वाला है और जो हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस इज गैप्स। फॉर ईच गैप there will be one of three outcomes which must be recorded and action. Gap must be closed. ये इतना जो है ना, ये सब डिटेल है। यू नीड टू नो व्हाट इज गैप, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। व्हाट इज गैप you need to know, and you need to find out within 1 or 2 sentences, nothing else. Nobody will ask you about gap analysis because you are not going to learn or going to provide this kind of service at the time of the first time। आपको फर्स्ट टाइम गैप एनालिसिस कोई करने नहीं देगा। 5 to 6 years एक्सपीरियंस जिस लोगों को बन जाता है, उन लोगों को बुलाना पड़ता है। মানে স্যার গ্যাপ যদি কেউ মানে ইন্টারভিউতে আসতে হয় তো জাস্ট হোয়াট ডু এটা মিন বললে বাই তবে গ্যাপ যে অ্যানালিসিস, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। এখান থেকে তোমার যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমি বলে দিলাম, সেখান থেকে তোমাকে জাস্ট এক লাইন দু লাইনের মধ্যে গ্যাপের ব্যাপারটা তোমাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে, ব্যাস, দ্যাটস এন্ড। আচ্ছা তোমাকে মানে ইটস এ ডিফারেন্ট। রিয়েল টাইমে কেউ গ্যাপ অ্যানালিসিস করতে ডাকবে না, আর কেউ এক্সপেক্টও করবে না তোমার কাছ থেকে। मैडम हाँ सर। क्लियर। क्लियर। तो ये चीज़ को आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन बनाना है आज रात से। मैं हाँ इतना सर। एफर्ट दे दिया आज, एंड यू नीड टू डू एज पर योर। हाँ सर। और एक सर मैं बात बोलूंगी, अगर जैसे हम लोग दो जन अभी मिलके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अगर कुछ डाउट हुआ तो कुछ या फिर खुद से प्रिपरेशन करके आगे डिस्कशन करने का मूड में, you जैसे can हम लोग। share both of them your number, I have no problem। हाँ शुभजीत एक्चुअली क्या होगा, मैडम, क्या सर। होगा जो। मैडम हाँ सर। आप हाँ सर शुभजीत का बोलिए। नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर। शुभजीत तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर बोलो, मैडम नोट हाँ कर निक। हाँ 890 890 24 890 24 424 24 डबल नाइन जीरो। एक मिनट, 2। वेट, कूल। सिंपली इस टाइम में हमको थोड़ा पॉज करना है। क्या नाम बोलते हैं, यूट्यूब में चले जाए तो आप लोग पागल हो जाएंगे, इतना सारा फोन आ जाएगा आप लोगों के पास। हाँ हाँ, मैं ये इसीलिए सही बात है। है ना। हाँ हाँ। तो एंड इट विल गिव यू मोर बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग, मोर बेनिफिशियल यू विल गेट। हाँ सर। স্যার हाँ বলছিলাম सर। ওয়ার্ডে কিংবা এতে না করে হাতে লিখলে আই থিঙ্ক বেটার হবে। হাতে লিখছি দ্যাট স্যার। উইল ইউর ইউজ। আমি তো এটা বলতে পারবো না ভাই কি করলে কি হবে। না স্যার হাতে লিখছি কারণ লেখাটা অ্যাটলিস্ট মেমোরাইজ হয়ে যাবে না, যেটা আমি কেটে লিখবো। ইট ইজ ডেফিনেটলি গুড। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি পুরো এই এটা আমার কাছে প্রিন্ট আউট করা আছে, আমি প্রিন্ট আউট থেকে মার্ক করছিলাম, তারপর আরে মার্ক করতে আমি করে আমি আমরা যে ডিসাইড করেছিলাম যে এই ডকুমেন্টগুলোকে প্রিন্ট আউট করে প্রত্যেকের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু এই ডকুমেন্টের মধ্যে এত রং স্পেলিং আছে যেগুলো দিলে নিজের মান সম্মান हाँ চলে যাবে। एग्जैक्टली सर। हाँ আমি हाँ, আমি नहीं नहीं, পড়াতে वो পড়াতে नहीं অনেক ঠিক करना चाहिए করেছি। हम लोग। हाँ, আমার কাছে কি আছে, इसको अगर हम लोग कोई প্রিন্ট माने আউট करते कुछ ম্যাক্সিমাম नॉलेज 150 ना টাকা होके লাগবে। पढ़े। हाँ सर, क्या होता है जब हम लोग के पास उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। और इसके लिए इस सपोर्टिंग देखिए, इसके लिए सपोर्टिंग कौन चीज़ हेल्प करेगा,
दैट इज 4 जो चीज़ है, रियल टाइम प्रोजेक्ट 1, रियल टाइम प्रोजेक्ट 2, रियल টাইম প্রজেক্ট 3। শুভদীপ তুমি দেখবে তোমাকে দেওয়া আছে ওটা 4টে ডকুমেন্ট, হ্যাঁ স্যার আমার খোলাও আছে ওটা, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই ওই বলুন। 4টে ডকুমেন্টকে হেল্প নাও অলওয়েজ। ওইখান থেকে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজটা হ্যাঁ ইজি স্যার, করতে পারো কিনা, ঠিক আছে? ইট ইজ ইওর ডিউটি, ইট ইজ আ প্রসেস। স্যার এটা তো আগের দিন করার ছিলেন, এটা আমি তো এগুলো এক্স্যাক্টলি, ওই এক্স্যাক্টলি, ডেভেলপমেন্ট সার্ভার, কোয়ালিটি এক্স্যাক্টলি, সার্ভার, প্রোডাকশন সার্ভার তো এক্স্যাক্টলি, পড়েছি। এক্স্যাক্টলি। দেখো আজকে যদি আমি তোমাকে কিছু কনফিগারেশন শেখাই না, আমি একটা ডিএমই প্রজেক্ট করাবো, শেখাবো, দ্যাট ইজ ফাইন, ওকে ফাইন, কোনো অসুবিধা নেই। বাট আমার মনে হয় আজকের দিনে যে ক্লাসে ফার্স্ট টাইম জীবনে করালাম, ইট ইজ অ্যামেজিং। মানে এই যে এত সুন্দর তুমি বেনিফিটটা পেয়ে গেলে যে কীভাবে পড়তে হয়, হাউ টু রিড দ্য ডকুমেন্টেশন, how to find out the questions and how to tackle the questions। क्या है मैडम, ये 4 लाइन 5 लाइन में इतना टफ टफ वर्ड लिखा हुआ, इससे आपको फाइंड आउट करना है कौन किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। आप लोग तो एकदम पूरा डार्क सिचुएशन में थे ना, हाँ हाँ फुल्ली, हाँ सर हाँ ठीक है? तो वी ओके शुड क्लोज ओके इट ठीक डाउन। है। ऑलरेडी मेरा नया स्टूडेंट आ चुका है, उन लोगों को, उन लोग 15 ओके दिन सर, बाद आए आज, इतना हड़बड़ी है, ओके सर। ठीक है? चलो, স্যার স্যার যেটা স্যার ইউটিউবে দেবেন স্যার, নাম্বারটা বলছিলাম কিছুটা হয়তো ঢুকে গেছে, ওটা স্যার কাট করে ওটা দেবেন। ওটা ওটা এ করতে পারবে না, ওইখানেই তো শেষ, তোমার তো লাস্ট 4টে নম্বর বলিনি। ওকে ওকে স্যার, ওকে ওখানে স্টপ করে দিচ্ছি আমি ওখানে, ঠিক আছে? স্যার। নাহলে কোয়ারি দিয়ে আমার কাছে এখানে আসবে না, পাগল হয়ে যাবে তোমরা কোয়ারি করতে করতে পুরো। আমার আমি ওই আমি কারণে। हाँ আমি हाँ এখন পুরো পাজলড হয়ে যাই, পুরো ফুললি পাজলড। 4টে কল हाँ অলরেডি ঢুকে গেছে এর মধ্যে, অড নাম্বার থেকে এই ক্লাসের মধ্যে, ঠিক আছে? স্যার ঠিক আছে স্যার, ঠিক স্যার আছে নেক্সট ম্যাডাম, নেক্সট ডে ওভার দিন। ওয়েডনেসডে, আজকে কি আছে? আচ্ছা নেক্সট ফ্রাইডে, সরি নট ফ্রাইডে, वेडनेसडे নেক্সট ফ্রাইডে, ওকে? স্যার আমারও ফ্রাইডে। ফ্রাইডে যদি তোমাদের এই পার্টনারশিপ ভালো, মানে এই গ্রুপিং ভালো ম্যাচ করে যায়, দেন ইন S4 হোনা you can go with मैडम, वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा मैडम। सर जो है, सर बहुत दिन IBM में है, वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है ना? तो विल गेट हाँ बेनिफिट। सर ओके सर ओके, थैंक यू। ओके सर थैंक यू